Good afternoon. Welcome to EduCert Network. Friend, as you know, we are having discussion on clinical psychology. Yesterday we discussed about child psychology. Today we will focus more on mental disorder. And for discussion on this very topic, we have in the studio the same resource person, Ms. Mimansan Siktava. She is a clinical psychologist, one of the leading hospital in Delhi. So I hope her knowledge and experience will help us to understand this topic in a new perspective. So without taking much time, I request her for start EduCert lecture on the topic. Welcome. Thank you. So I work as a clinical psychologist at Max Hospital. Yesterday I took a session on how you take an initial interview when a patient comes to you. So clinical case history and mental status examination. Along with that, I also focused on, at a larger extent, on child psychology and the various disorders in that. Today I'll talk about mental disorders across almost all age groups, especially from adolescent to later adulthood. So I'll start with mood disorders. So mood disorders are basically of 5 types. So one is major depressive disorder, then bipolar, 1, 2, dysthymia and cyclothymia. So mood disorder basically अगर आप मोटे रूप से अगर आपने सुना है तो क्या होता है, एक तो होता है कि पेशेंट को डिप्रेशन होता है. सो डिप्रेशन में भी एक होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें मन उदास रहता है, किसी भी चीज़ को करने में कोई इच्छा नहीं रहती है, रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप करते हैं कोई भी चीज़ उसमें किसी में इंटरेस्ट नहीं आता है. देन वेट लॉस या वेट गेन, क्योंकि या तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है या बिल्कुल कम हो जाती है, नींद या तो बिल्कुल नहीं आती या बहुत ज़्यादा आती है, आपका जो एक्टिविटी है मोटर एक्टिविटी या तो बहुत बढ़ जाता है या कम हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती है, मन ऐसा रहता है कि हम किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हैं, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है. बहुत ज़्यादा केसेस में जब सिवियर हो जाता है, दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. देन सुसाइडल इडिएशंस या ऐसे अटेम्प्ट्स भी होते हैं. ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, and especially in adolescent between ages 15 to 24. In females in girls it is more, and in boys it is little less. Then if we talk about the opposite of what is depression is a manic episode. So इसमें क्या होता है, बिल्कुल opposite होता है. Manic episode में basically आपका मन बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप इरिटेबल रहेंगे, या आपको आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको बड़े बड़े आइडियाज़ आएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं आई कैन अचीव दैट ऑल्सो, आई कैन राइट अ डायरी एंड पब्लिश इट, और आई कैन समथिंग दैट इज़ नॉट ऑफ योर लेवल बट यू थिंक अ लिटिल मोर अबव इट. डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, नींद नहीं आती है आपको, बहुत ज़्यादा बोलता है पेशेंट, या इससे प्रेशर रहता है बोलने का कंटिन्यूसली, डिस्ट्रैक्टेबल रहता है, अटेंशन नहीं रहती है. देन देर इज़ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जो हैं, कभी ये सोच रहे हैं कभी उधर सोच रहे हैं, दिमाग इधर उधर भागता रहता है, कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं हो पाती है, एक पर्टिकुलर गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं हो पाती है. देन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में जैसे स्पेंडिंग टू मच मनी इन शॉपिंग और सेक्शुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. So there is excessive involvement in pleasurable activities. Now bipolar 1 and 2, bipolar 1 is basically when there is a history of one or more major depressive disorder and at least one manic episode. So एक तो आपके depressive phases रहते हैं and कम से कम एक episode रहता है manic episode. Bipolar 2 में again there are depressive episodes but one hypomanic episode. Hypomanic is a little less severe than a manic episode. Then we talk about dysthymic disorder, which is again a kind of a depressed mood which is persistent over a longer period of time. So 1 या 2 साल तक एक constant low dull phase रहता है, जिसमें आपकी appetite कम रहती है, नींद कम या ज़्यादा आती है, एनर्जी बहुत कम रहती है, अगेन फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, concentration, decision making, ये सब नहीं रहता है. Then we talk about cyclothymic disorder. It is again an opposite of dysthymic disorder. For at least 2 years, there are periods of hypomanic symptoms and certain depressive features.
बट वो ऐसे इतने ज़्यादा डिप्रेसिव फीचर्स नहीं होते कि वो मेजर डिप्रेसिव को मीट करें. देयर माइल्ड लो फेजेस, but there are presence of numerous hypomanic phases over a period of time, for a longer period of time. जैसे ये मोटे तौर से मूड डिसऑर्डर्स हैं. नाउ वी टॉक अबाउट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स मतलब घबराहट की बीमारी. अब घबराहट की बीमारी भी कई तरह की होती है. एक तो होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, देन देर इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, देन देर इज़ अ पैनिक डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया एंड एगोराफोबिया. अब अगर हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक्सेसिव घबराहट, वरी कम से कम 6 महीने के लिए रहती है, जिसमें आपकी ये परेशानी आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. सो 2 से 3 सिम्टम्स इनमें से होते हैं. एक तो रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वजह से, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी रहती है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मसल में टेंशन मतलब तनाव, गर्दन में कभी कहते हैं, कभी बैक में कहते हैं, और नींद में दिक्कत आती है. ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स अगेन. Then if I talk about a panic disorder, panic disorder is almost like an episode where you have this extreme alarming fearfulness. घबराहट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है कि आपको एकदम से ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, अभी कुछ बुरा हो जाएगा. तो इसमें आपका सांस फूलने लगता है, कभी चेस्ट में पेन हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, थ्रोट में चोकिंग हो रही है, कभी ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा या मर जाएंगे या आसपास कुछ और चला जाएगा. देयर इज़ एन इम्पेंडिंग डूम फीलिंग दैट इज़ देयर. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेयरफुलनेस रहता है पेशेंट में. देन अगेन औरतों में 3 टाइम ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेन. एज इज़ बेसिकली फ्रॉम 25 or less, a little less than that, but mostly 25 years of age. Then agoraphobia. अगोराफोबिया में ये होता है कि बेसिकली कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें पैनिक हो जाएगा और पेशेंट को ये लगता है कि उस सिचुएशन से दूर भागना या उससे बच के भागना बहुत मुश्किल होएगा. सो बेसिकली क्योंकि उसको ये लगता है कि वो उस सिचुएशन पे जब वो एंग्जाइटी या पैनिक अगर नहीं हट पाएगा, सो पेशेंट उस सिचुएशन को या उस इवेंट से उसको फेस करने में ही दिक्कत होती है और अवॉइड करता है कि उसको फेस ना करें. सो बहुत एक्सट्रीम केसेस में कभी कभार पेशेंट्स घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं. देन इफ वी टॉक अबाउट अदर फोबियाज, स्पेसिफिक फोबियाज. Specific phobia is again an anxiety response which is unreasonable in the sense अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल नीडल है, कुछ लोगों को नीडल से बहुत ज़्यादा डर लगता है. सो नीडल से आमतौर पर इंजेक्शन से बच्चे भी डरते हैं, बट इन लोगों की जो एंग्जाइटी या जो फियर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है टू दी एक्सटेंट कि ये लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, या नीडल अगर सामने आ जाए तो इन्हें एक पैनिक जैसा फीलिंग होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है. सो some kinds of specific phobias are like animal phobia, blood injection injury phobia, natural environment phobia, situational phobia. Again, it is 2 times more common in women than in men, and 6 months तक ये symptoms होने चाहिए. Then social phobia. इसमें again there is an unreasonable fear of an object or a situation. fearfulness ये रहती है या लोगों से मिलने में, crowded places में जाने में, इन सब चीज़ों में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है. सो डर क्या रहता है? सो कभी कभार लोगों ने, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब हमसे घबराहट एकदम से होती है जब हम लोग से बात करते हैं या हम फ़ोन पे बात करते हैं, हमारे सामने कोई आदमी आ जाता है जिससे हम बात करते हैं, लेकिन हमारी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि हमसे बोला नहीं जाता. सो इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को ऐसे थॉट्स आते हैं कि हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं हम अपने आप को एम्बैरस ना कर रहे हो, या पता नहीं दूसरा इंसान क्या सोचेगा, या किसी तरह की ह्यूमिलिएशन की. वी डोंट हैव टू गो अंडरगो एनी काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन, so that self doubt is there a lot, which causes a lot of anxiety. So that this is called social phobia. Then again, females are affected more, and lifetime prevalence is 3 to 13%. Peak onset age जो होता है teens में होता है, teenager. Then we come to obsessive compulsive disorder, OCD. अब काफ़ी लोगों ने I think it has been talked about quite a lot in newspapers and in magazines as well, and at large people do know about it.
इट इज़ मार्क्ड बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है रिलेटेड टू सर्टन थिंग्स. सो एक तो होता है ऑब्सेसिवनेस, मीन्स सर्टन थॉट्स दैट कीप कमिंग टू योर माइंड विच आर वेरी वेरी इंट्रूसिव इन नेचर. सो ये थॉट्स अगर पेशेंट को पता भी है कि इरेशनल है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी ये थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं. इस थॉट से जैसे ही वो हटने की भी कोशिश करते हैं तो घबराहट फिर भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है. बहुत केसेस में कंपल्शन इज़ अगेन एन एक्ट टू डील विद दीज थॉट्स और इन जनरल एक्ट्स. सो जैसे ऑब्सेशन आया आपको कि ये जो कप ग्लास का जो प्लेट है ये गंदा है. अब अगर पेशेंट को ये थॉट आया कि ये गंदा है, सो ये थॉट आता रहेगा. कोशिश भी करेंगे अगर वो उससे अपना दिमाग हटाने की, फिर भी ये थॉट आता रहेगा. सो उसका कंपल्शन, उसका बिहेवियर एक्ट क्या होएगा कि वो जाके हाथ धो लेंगे इसको टच करने के बाद. सो दिस इज़ अ कंपल्शन एक्ट. सो एक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल माइंड में गिनती करना, या कोई चीज़ को बार बार डबल नंबर्स, किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स किसी चीज़ को छूना, या किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स हाथ धोना, या किसी चीज़ को उल्टा सीधा करना. दीज आर सर्टन एक्ट्स, कंपल्सिव एक्ट्स. कुछ देन वी टॉक अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेसिकली एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद लोगों को ट्रिगर होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉम्ब किसी पेशेंट ने देखा हो, उस टाइम पे सिचुएशन पे हो जहाँ बॉम्बिंग हुई है, सो द पेशेंट विल हैव दिस इंक्रीज्ड अराउजल whenever that thoughts or that something similar happens. So they have a constant anxiety, but at time even the flashbacks of what had happened will keep coming to their mind. Images, memories, नाइटमेयर्स, रात को सोया नहीं जाता है, रात उठते हैं एकदम से, पैनिक अटैक्स आना, कन्फ्यूजन रहना, लोगों से ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ एंजाइटी ट्रिगर होती है उससे दूर भागना, कभी कभार एग्रेशन आना, ये, या फिर बहुत ज़्यादा केसेस में कभी लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपने आप को हार्म करने की भी कोशिश करते हैं. देन वी टॉक अबाउट सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो होते हैं बेसिकली इनमें किसी तरह की फिज़िकल सिम्टम है जो आता है, पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, बट जिसका कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं होता है. इट इज़ मोर साइकोलॉजिकल इन नेचर. सो बहुत बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट्स को या आम तौर से लोगों को बार बार सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना या चेस्ट में दर्द होना, सो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियंस के पास, बट डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे टेस्ट में तो कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है. सो इट इज़ बेसिकली अ फिजिकल इलनेस, अ फिजिकल सिम्टम, पेन और एनीथिंग दैट कम्स आउट विच इज़ मोर बिकॉज ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो घबराहट से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, बट ये फिजिकल फॉर्म में ज़्यादा आती हैं. इसीलिए कभी कभार जब बार बार इनका डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी जब उनका नहीं पता चलता है, तो पेशेंट स्टिल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू टेक सर्टन मेडिकेशंस कि एटलीस्ट कुछ टाइम तक कुछ तो आराम आता रहेगा, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन दे एंड अप रियलाइजिंग दैट दे प्रॉब्ली even the physicians now have started sending them that probably it is because of a psychological problem. So एक होता है सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, जिसमें 30 ईयर्स से पहले ये सिम्टम्स होते हैं बेसिकली. सो कम से कम 4 पेन के सिम्टम्स, 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, एक सेक्शुअल सिम्टम और एक सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम. सो 4 पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एटलीस्ट 4 पेन एरियाज, 2 तरह की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होती हैं, किसी तरह की सेक्सुअल सिम्टम होती है, इंटरकॉर्स में प्रॉब्लम होता है या जनरली कोई और सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है. देन कोई न्यूरोलॉजिकल, सूडो न्यूरोलॉजिकल जैसे कन्वर्जन हो गया या सूडो सीजर्स हो गया, इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं. देन हाइपोकॉन्ड्रियासिस. हाइपोकॉन्ड्रियासिस बेसिकली होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपेशन रहती है अपने शरीर के बारे में. सो किसी आदमी को कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट बीट बढ़ रही है कि हमें पैनिक अटैक ना आ जाए या हमें कार्डियो प्रॉब्लम ना हो सकता है हमें कार्डियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो. सो एक छोटी सी चीज़ को उनका घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ती है और उनका प्री ऑक्यूपेशन अपनी बॉडी के बारे में इतना ज़्यादा रहता है कि वो सिम्टम्स को थोड़ा बढ़ा के सोचते हैं. एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अंडर देयर कंट्रोल. Also, if you see that these people generally when they're reading newspapers or they're reading magazines, इनका attention mostly इन्हीं चीज़ों पे जाता है, तरह तरह की बीमारियों के ऊपर.
क्योंकि इनकी घबराहट अपने शरीर को लेके बहुत ज़्यादा रहती है. सो छोटी सी कोई बीमारी होती है तो ये लोग फटाफट से डॉक्टर के पास चले जाते हैं. इन सम केसेस दीज पीपल हैव अ ह्यूज फाइल ऑफ टेस्ट डन, हर चीज़ का लिए एक टेस्ट किया होता है. देन वी टॉक अबाउट कन्वर्जन डिसऑर्डर. कन्वर्जन डिसऑर्डर में बेसिकली अगेन फिजिकल फॉर्म में जो होती है बीमारी आती है. सो फॉर एग्जांपल मोटर डिफ़िकल्टी है किसी तरह की, या किसी लेफ़्ट साइड पैरालिसिस हो रखा है जो या फिर सेंसरी फंक्शंस में थोड़ा दिक्कत आता है. ये सारी चीज़ें होती हैं बट इनका कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं होता है. अगेन दे आर मोर साइकोलॉजिकल इन नेचर. Patients are not really aware of why they're having these pain. There is no motive, a planned motive or a goal-directed motive towards these problems, these physical illness. ये patient के control में नहीं होता है. तो कोई अगर तकलीफ होती है, कोई stress होता है, तो इनकी जो तकलीफ है वो physical form में निकल कर आती है बाहर. So for example, pain in the right side of the body. और फिजिशियंस के पास जा रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा कि पेन राइट साइड में क्यों हो रहा है. इट इज़ मोर टू डू विद द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. राइट. देन वी टॉक अबाउट बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर. इसमें अगेन देयर इज़ अ प्रीऑक्यूपेशन कि हमारे शरीर में या हमारे फेस में कोई डिफेक्ट है. सो अगर थोड़ा सा किसी को लगेगा कि नाक में हल्का सा कट है तो उनको लगेगा कि उनकी नाक परफेक्ट नहीं है. दे विल गो एंड अंडरगो सर्टन सर्जरीज वन आफ्टर द अदर. So there is a marked excessive concern about certain aspects of the body or one's appearance, which is more imagined in nature, which is not very realistic. So अगर आप देखेंगे आपको कुछ नहीं लगेगा कि फेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये बार बार आता है कि नहीं हमारा ये ठीक नहीं है, हमारा ये ठीक नहीं है, शायद ये ठीक कराना चाहिए, शायद ये ठीक कराना चाहिए. Now we go on to schizophrenia and other psychotic disorders. So schizophrenia is basically characterized by certain features. So 2 महीने से कम से कम 1 महीने के लिए या 1 से ज़्यादा महीने के लिए delusions, hallucinations, किसी तरह की speech, disorganized behavior and certain other negative symptoms. For example, affect नहीं होता है, जो मैंने कल जिस बारे में बात करी थी. affect in the sense जो अगर आप जो बोल रहे हैं महसूस कर रहे हैं आपके फेस पे नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है आपका, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं. देन डिल्यूजन्स अगेन एज आई टॉक्ड अबाउट यस्टरडे कि कुछ ऐसे थॉट्स या बिलीव्स होते हैं जिनका कोई बेसिस नहीं होता. सो दे आर वेरी बिजार इन नेचर. हेल्यूसिनेशंस अगेन किसी विजुअल और ऑडिटरी कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है जो एक्चुअली में नहीं है. Then again disorganized speech, they are repeating certain things or they are making certain words out of certain things. So schizophrenia are basically of 5 types: paranoid, catatonic, disorganized, undifferentiated and residual. Now paranoid is when a patient has paranoid kind like of delusions. So delusions ऐसा होएगा कि वो मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, या वो मुझे चोट पहुंचा देंगे, या वो मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, या कुछ आर्मी के लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, मुझे किसी तरह से चोट पहुंचा देंगे. टू एन एक्सटेंट एट टाइम्स दे डोंट इवन ट्रस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स. सो अगर वो खाना खाते हैं तो उनको ऐसा लगता है वो खाने में कुछ मिला के दे देंगे. कैटाटोनिक, ये बेसिकली मोटर, इसमें या तो बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी रहती है या बहुत कम मोटर एक्टिविटी रहती है, जिसे कहते हैं स्टूपर स्टेट. बिल्कुल या तो कोई मोटर एक्टिविटी नहीं है, या इस तरह की मोटर एक्टिविटी रहती है कि अगर आप पेशेंट खड़ा है, अगर आप उसको एक पोजीशन में खड़ा कर देंगे तो वो वैसे ही खड़ा रहेगा कई घंटों तक. या अगर आप कोशिश करेंगे कुछ हिलाने की बॉडी पोस्चर, तो वो इतना ज़्यादा रिजिड होएगा कि वो बिल्कुल नहीं हिलाएगा अपने आप को. देन डिसऑर्गेनाइज्ड, इसमें अजीब तरह का हंसना या सिली लाफ्टर और एनी डिसऑर्गेनाइज स्पीच या कोई ऐसी हरकत अगेन जो थोड़ी सिली लगती है या कोई जिसका डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है. दीज आर अगेन सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया. लाइफ टाइम प्रेवलेंस इज़ 1%. बोथ आदमी और औरतों में इक्वल प्रेवलेंस है इसका. Then if we talk about certain factors which are indicative of less severe and chronic course. So basically अगर आप अच्छी फैमिली से हैं जहाँ या
मैरिड हैं या फीमेल्स में बेसिकली थोड़ा सा प्रोग्नोसिस बेटर रहता है, या जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है उससे पहले आपकी जो प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी या उससे पहले आपको कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं रही है, आप ठीक ठाक रहे हैं, सेहत ठीक रही है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, देन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या है, ऑनसेट एकदम से हुआ है. सो दीज आर सर्टन इंडिकेटिव्स कि कहाँ पर प्रोग्नोसिस थोड़ा बेटर रहेगा. देन प्रोग्नोसिस कहाँ पुअर रहेगा. वन, अगर आप सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप डिवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं, आदमियों में थोड़ा प्रोग्नोसिस पुअर रहता है. आप कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं. जब आपको ये बीमारी शुरू हुई उससे पहले आपकी साइकोलॉजिकल इलनेस थोड़ा सा पहले भी था, या आपका जो ऑनसेट रहा है वो धीरे धीरे शुरू हुआ है. Then other psychiatric disorders, schizophreniform, schizoaffective, delusional, brief psychotic disorder. So basically, if we talk about psychoaffective disorder, इसमें ऐसे एपिसोड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 2 weeks कोई मूड की सिम्टम्स नहीं रहते हैं, बट अदरवाइज along with hallucinations and delusions, patients also have either major depressive disorder or a manic episode, and presence of delusions or hallucinations for at least 2 weeks without any prevalent mood symptom. So along with hallucinations and delusions तो रहती हैं, but ऐसा कोई पीरियड भी होता है जिसमें मूड जो है फ्लक्चुएट नहीं करते हैं. Then delusional disorders. Now delusions are again false beliefs. So इसमें जो bizarreness होती है जो thought की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है. So for example, delusion of persecution. So आप पेशेंट को ये लगेगा कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा देगा. So जो उनका डिल्यूजन या उनका थॉट रहेगा वो इतना बेजार नहीं होगा. सो आम तौर पे ऐसी चीज़ होगी बट उसका कोई वो नहीं रहेगा, इन द सेंस देयर इज़ नो बेसिस टू इट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट इफ़ यू सी द डिल्यूजन इज़ नॉट दैट बिजार. सो अनदर एग्जाम्पल कुड बी डिल्यूजन ऑफ इन्फिडेलिटी, कि मेरा पार्टनर जो है मुझ पर चीट कर रहा है. सो इफ़ यू सी otherwise in reality something like this happens, but however with that patient that is not happening and it is his own belief कि मेरा पार्टनर मुझसे चीट कर रहा है. देन वी गो ऑन टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मोटे तौर से 3 तरह के होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी. नाउ वी स्टार्ट विद क्लस्टर ए. क्लस्टर ए में 3 तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, पैरानॉइड, स्किज़ोइड एंड स्किज़ोटिपल. पैरानॉइड पर्सनैलिटी अगेन इफ यू टेक फ्रॉम पैरानॉइड डिल्यूजन्स, ये इस तरह की पर्सनालिटी होती है कि वो लोगों को सस्पेक्ट करती है, उन पे ट्रस्ट करना उन्हें मुश्किल होता है, डाउट्स रहते हैं उन्हें लोगों के ऊपर, किसी में ट्रस्ट नहीं करते हैं तो किसी को जल्दी से कुछ बताते भी नहीं हैं. देन हर चीज़ में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें किसी तरह का हिडन मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं. ऐसा लगता है उन्हें कि कोई और उन्हें अटैक ना कर दे. सो देर इज़ अ रेकरेंट सस्पिशन दैट दे कीप कैरिंग इन देयर माइंड. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक एनी इंटरपर्सनल रिलेशंस. दे आर वेरी वेरी गार्डेड ऑल्सो इन नेचर. देन स्किज़ोइड पर्सनैलिटी. स्किज़ोइड पर्सनैलिटी नाउ बेसिकली इट्स अ डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स, एंड जो उनकी इमोशंस होते हैं इन इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं. सो एक तो उनको ना तो डिज़ायर होती है, ना वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं कोई भी किसी टाइप का क्लोज अटैचमेंट. देन हमेशा कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो अकेला रहना पसंद करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं. उनका इंटरेस्ट इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ इज़ वेरी वेरी लेस. देन क्लोज फ्रेंड्स या तो बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो 1 या 2 जिनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलते. They still prefer to be alone. Then they appear to be very indifferent in case if there is any praise or any criticism. So उसको बहुत ज़्यादा indifferent तरीके से लेते हैं, बहुत react नहीं करते हैं. So emotional coldness होती है एक तरह की.
Schizotypal personality is now again social and interpersonal relations में deficits होते हैं. Along with that there is some oddity in behavior. कुछ ego sense, there are some cognitive or perceptual disturbances, distortions that are there. They're not hallucinations or delusions per se, but it is similar to what is it when a patient has schizophrenia. This is how you differ, the two schizoid and the schizotypal differ also. So again they might have some ideas of reference कि वो मैं जो सोच रहा हूँ बोल रहा हूँ, हो सकता है वो सोच रहा हो या हमारे थॉट्स को पढ़ रहा हो. कुछ उनकी ऑड बिलीव्स होती हैं, किसी तरह की मैजिकल थिंकिंग. देन कुछ एक्सपीरियंसेस को वो बहुत अनयूजुअल तरीके से देखते हैं. सस्पिशियसनेस भी हो सकती है टू एन एक्सटेंड. ऐसे ख्याल आते रहेंगे कि हो सकता है कुछ गलत ना हो जाए या वो हमें नुकसान पहुंचा देगा या हमारे अगेंस्ट है. देन अगेन अफेक्ट जो होता है इनका बहुत कंस्ट्रिक्टेड होता है या इनअप्रोप्रिएट होता है. सो अगर किसी के डेथ पे जा रहे हैं, सो दे विल प्रॉब्ली नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिमॉर्स और एनी काइंड ऑफ सैडनेस. देन लैक ऑफ अगेन क्लोज फ्रेंड्स, excessive social anxiety. Sorry, I would like to interrupt you. We have a question from Rajasthan. Please ask your question. हेलो. Yeah, please ask your question. हाँ जी, नमस्कार जी. नमस्कार. ये 2 साल से मेरे को लगभग क्या है, घबराहट होती है बहुत ज्यादा अचानक. और इसके कॉज जो रूट कॉज है, मेरे फादर मदर ओल्ड है. एक तो वो फादर एक्सपायर हुए थे और मैं रेलवे में हूँ. तो मेरे जैसे ट्रेन से 2 पर्सन रन ओवर हुए थे. उसके बाद से क्या है, मैं ड्यूटी पे जाने से पहले एकदम अचानक घबराहट शुरू होने स्टार्ट हो जाती है 2-3 घंटे पहले से ही. और मैं बड़ा परेशान हूँ इस वजह से, ड्यूटी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ अपनी. कहाँ जाने से पहले शुरू हो जाती है घबराहट? सो बेसिकली अगेन घबराहट जो होती है इन्हें किसी से भी मिलने में या कहीं जाने से इससे पहले शुरू होती है. इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इनकी लाइफ में बताए हैं कि इनकी फादर की डेथ हो गई है जो रेलवे में थे. देन मदर अगेन इज प्रॉब्ली नॉट वेल, दैट्स व्हाट ही सेड. सो देयर आर सर्टेन इमोशनल डिफिकल्टीज इन एनी केस दैट ही इज गोइंग थ्रू. सो घबराहट की बीमारी इन एनी केस द कॉजेज फॉर इट कुड बी बोथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. सो बायोलॉजिकल होता है एक तो केमिकल की इम्बैलेंस की वजह से. सो कभी भी कोई भी ऐसा ट्रिगर हो सकता है, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं सो ट्रिगर हो जाएगा, कुछ थॉट्स आएंगे आपको जिसकी वजह से घबराहट पैदा होती है. सो एक तो केमिकल को ठीक करने के लिए उसका मेडिकेशन का इम्पॉर्टेंट होता है, राइट. देन दूसरा साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि जब घबराहट होती है तो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं. सो अगर ये कहीं जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो इनके दिमाग में किसी तरह के कुछ नेगेटिव थॉट्स आते होंगे जिससे घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है. सो एज अ थेरेपिस्ट और एज अ साइकोलॉजिस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो थॉट प्रोसेस को चेंज करें. बेसिकली में फोकस करना है कि वो सोच नहीं है, सोच को बदले, अटेंशन को डाइवर्ट कर दें वहाँ से. हाँ, बहुत उसके बहुत टेक्निक्स होते हैं, तरह तरह की टेक्निक्स होती हैं. कहीं होता है कि हम एक्सपोज करते हैं उन्हें और उनको हेल्प करते हैं रिलैक्सेशन से कि वो कम हो. देन उनके जो थॉट प्रोसेस है जो नेगेटिव है या इरैशनल है या इलॉजिकल है उनको हम चेंज करें. Then curable है इसको? Yeah, definitely it's curable, but it's very important since all these disorders have a biological aspect to it that medications के साथ साथ ये सारी चीजें हों. So get it checked and then. Yeah. Okay. Right. So as I was talking about personality disorders, cluster B, the other cluster of personality disorders that I'll start with now: antisocial personality, borderline personality, narcissistic and histrionic. एंटी सोशल पर्सनैलिटी होता है बेसिकली 15 साल की उम्र के बाद, बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्टली 18 ईयर्स ऑफ एज. सोशल नॉर्म्स को कंफर्म नहीं कर पाते हैं. किसी तरह की इम्पल्सिविटी ऐसी होती है जिसमें आप कोई भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं. बहुत ज़्यादा एग्रेशन रहता है या इरिटेबिलिटी रहती है. देन डिसरिगार्ड किसी अथॉरिटी फिगर या कोई आपसे बड़ा है या अदरवाइज इन पीयर्स यू डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड द अदर पर्सन. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. कोई भी आप गलत काम करेंगे तो उसमें आपको कोई रिमोर्स या गिल्ट फीलिंग नहीं होगी. झूठ बोलना, चोरी करना या किसी तरह के रूल्स ब्रेक करना. सो देन वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. Borderline personality disorder is basically related to instability in interpersonal relations. So कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
स्टेबल रिलेशनशिप्स में नहीं रह पाते हैं, अगर रिलेशनशिप में होते हैं तो उसमें इनस्टेबिलिटी रहती है। अपने बारे में जो उनकी इमेज, जो उनकी सोच रहती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, इम्पल्सिव रहते हैं, एकदम से इम्पल्स आता है तो बिना सोचे समझे कुछ कर देते हैं। सो there can be mood fluctuations with these patients where they at times feel happy, at times they feel very sad, and what they feel and उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो किस हिसाब से महसूस कर रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। सो उनका डिसीजन मेकिंग या वो क्या किस सिचुएशन में कैसा उनको लेना चाहिए स्टेप, कभी कभार वो भी उनके मूड पे डिपेंड करता है। सो इन अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशन रहता है, अफेक्ट में इंस्टेबिलिटी रहती है, अफेक्ट इन द सेंस अगेन द मूड्स, द वे दे आर फीलिंग, उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है। आइडेंटिटी, अपने बारे में उनकी क्या सोच है उसमें डिस्टर्बेंस रहती है। कभी कभार सुसाइडल बिहेवियर भी रहता है, अटेम्प्ट सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स भी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खालीपन अंदर से महसूस करते हैं। देन बहुत ज़्यादा गुस्सा आना कभी कभार, या ऐसे ख्याल भी आना, किसी तरह के पैरानॉइड ख्याल आना कि जहाँ पर उन लोगों के साथ उनका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता है बेसिकली। देन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें होता है कि इंसान को अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ख्याल रहते हैं। सो पैटर्न ऑफ ग्रैंडियोसिटी और बिहेवियर वेयर दे फील कि दे शुड बी एडमायर्ड बाय एवरीवन, हर कोई उनको सराहना दे, उनके बारे में बड़ी बातें करे, अपने बारे में सेल्फ इम्पोर्टेंस उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। देन अब वो ये बिलीव करते हैं कि वो स्पेशल हैं और आसपास के लोग भी उन्हें यही महसूस कराते रहें। थोड़ा एम्पैथी लैक करते हैं इन द सेंस कि दूसरा की सिचुएशन में क्या उन्हें सोच समझ के क्या उनके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ है कि उनको करना चाहिए, वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं दूसरे के बारे में। अगेन आई इंटरप्ट यू, हैव कॉलर फ्रॉम उत्तरांचल। जी आपका स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैं मैम से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलिए सर, एक 19 ओल्ड का है, तो लास्ट मुझे कुछ सुपर नेचुरल, ठीक है, आप आई हैड अ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस, और मुझे क्या मुझे एक आदत हो गई है, मुझे नींद में भी कुछ सोचते रहने की कुछ ऐसी मतलब तकलीफ, फिर मुझे मेरा रिमाइंड करता रहता हूँ। The only thing that I got understand was they were saying कि हमें कोई सुपर नेचुरल ऐसे ख्याल आते हैं या पावर्स आ गई हैं ऐसे लगता है। हाँ, सो दो चीज़ें, एक तो होता है कि ये थोड़ा सा कंसिस्टेंटली नहीं होता है। सो एक तो मैनिक एपिसोड जो डिप्रेशन का अगेन ऑपोजिट होता है, उसमें ये लोगों को कभी कभार ऐसा लगता है कि उनमें कुछ पावर्स हैं या वो कुछ बड़ा कर देंगे, या साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिक्स जो होते हैं उनको ये लगता है कि उनमें पावर्स आ गई हैं, और या ऐसे ख्याल आते हैं कि वो कुछ बड़ा करेंगे या कुछ और उनमें और तरह की कुछ चीज़ें आ गई हैं, उनकी सोच में डिस्टर्बेंस आती है। सो अगेन इसमें पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दवाइयों का, मेडिकेशंस की। पहले एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, उनसे दवाई लें, जब वो स्टेबल हो जाएं थोड़ा तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी सोच को और अपने डेली रूटीन को अगेन उसको सेट तरीके से लेकर आएँ, बिकॉज आसपास के लोगों में उनमें भी तनाव बढ़ जाता है। सो हमारे कल्चर में फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल आता है। सो इन अ केस लाइक दिस, फैमिलीज़ का होना, उनको भी समझाना, उनको भी साइको एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then I go on to the histrionic personality disorder, the last disorder in cluster B. यहाँ पर एक्सेसिव इमोशनैलिटी और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा रहता है। सिचुएशंस में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा रहता है, वो चाहे उनकी बात करने के तरीके में आए, चाहे उनके पहनावे के तरीके में आए, उनकी स्पीच जो होती है अगेन बहुत ही ज़्यादा उनको बनावटी तरीके से वो चीज़ों को बोलते हैं। रिलेशनशिप्स वो ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट हैं, मतलब जितना होगा उससे ज़्यादा बढ़ा के बताएंगे, थोड़े से ड्रामेटिक होते हैं इन देयर बिहेवियर एंड इन देयर इमोशंस। देन द लास्ट इज़ द क्लस्टर सी, जहाँ पर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी आता है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी इज़ कि जो इंटरपर्सनल सिचुएशंस होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, लोगों से थोड़ा सा दूर रहने पसंद करते हैं। हाँ, विलिंगनेस नहीं होती है लोगों से बात करने की या उनसे इन्वॉल्व ऐसी सिचुएशंस में जाने की। इंटीमेट रिलेशंस मतलब क्लोज रिलेशंस में थोड़ा सा रिस्ट्रेंड रहते हैं, कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं।
कुछ क्रिटिसिज्म्स में ही प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं. देन अगेन सेल्फ इमेज जो होता है उनका अपने बारे में जो उनकी सोच होती है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती, अपने आप को थोड़ा कभी कम समझते हैं इन मोस्ट केसेस. देन पर्सनल रिस्क लेना पसंद नहीं करते, दे जनरली अवॉइड टेकिंग एनी पर्सनल रिस्क. देन डिपेंडेंट पर्सनालिटी, उनको थोड़ी दिक्कत होती है एवरीडे डिसीजंस लेने में. सो किसी ना किसी का सहारा ज़रूरी होता है कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो मम्मी से आप ले लीजिए डिसीजन, या पापा आप ले लीजिए डिसीजन, या हस्बैंड को बोलेंगे नहीं आप ले लीजिए डिसीजन, आई एम फेसिंग इट डिफ़िकल्ट टू चूज़. द डिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, घबराते हैं. देन अपना डिसएग्रीमेंट, किसी अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं पसंद या जिसमें उनकी एग्रीमेंट ना हो तो वो अपना डिसएग्रीमेंट नहीं शो करते हैं, थोड़ा डरते हैं वो पोर्ट्रे करने में. देन कोई काम को इनिशिएट करने में उन्हें दिक्कत होती है. देन बहुत ज़्यादा सपोर्ट और या प्यार चाहते हैं लोगों से. फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है. देन जब कोई घबराहट वाली सिचुएशन हो तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उनके पास रहे. They want to feel being cared because they feel very anxious being alone and insecure. Then the last is obsessive compulsive personality. कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसे होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती हैं कि परफेक्ट मैनर में हम ये करेंगे, ये पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए किसी काम को करने का. सो वो रूल्स, मॉरल्स, लिस्ट, ऑर्डर्स, इनके साथ बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं. अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो तब तक नहीं छोड़ेंगे उस काम को तब तक वो परफेक्ट ना हो जाए, या किसी और को वो काम देने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पता नहीं ठीक से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो खुद से ही वो काम करने की कोशिश करते हैं. परफेक्शन के क्योंकि काम जब तक परफेक्ट नहीं होता वो काम को नहीं छोड़ते, तो वो कभी कभार डेडलाइंस नहीं मीट कर पाते हैं, तो वो काम प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है. बहुत ज़्यादा कंसाइटिसनेस, मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं. सो हर चीज़ में राइटियसनेस, जहाँ पर थोड़ा सा मोल्ड होने की भी ज़रूरत होती है वहाँ मोल्ड नहीं हो पाते हैं. स्ट्रिक्ट मॉरल्स जो उनकी वैल्यूज़ जो बिलीव्स होती हैं उसी के साथ रिजिड रहते हैं. So basically these are the personality disorders. Now we talk about certain other disorders like eating disorders. So eating disorders दो तरीके के होते हैं, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड देन बुलिमिया नर्वोसा. बहुत ये एडोलेसेंट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर इफ़ यू टॉक अबाउट एनोरेक्सिया, बच्चे या एडोलेसेंट या टीनेजर्स कॉलेज गोइंग या इवन इन द इनिशियल 20s में जो होता है खाना बंद कर देते हैं, एकदम से बंद कर देंगे, बहुत कम कर देंगे या मिनिमल रहता है बेसिकली, क्योंकि उन्हें ये घबराहट या फियर रहता है कि वो मोटे हो जाएंगे. उनका जो वेट होता है वो इतना भी नहीं होता है जो उनकी एज या उनकी हाइट के हिसाब से जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उतना भी नहीं रहता, उससे भी बहुत कम रहता है, क्योंकि ये इंटेंस फियर रहता है हमेशा कि वो वेट ना गेन हो जाए या मोटे ना हो जाए. देन अगेन ये दो तरीके के होते हैं, एक तो रिस्ट्रिक्टिंग टाइप जिसमें लोग खाना बहुत कम कर देते हैं, अपने आप को रोकते हैं खाने से. दूसरा होता है बिंज ईटिंग और पर्जिंग टाइप. सो उनके एपिसोड होते हैं जहाँ पर एक तो बहुत बिल्कुल नहीं खाते, बहुत कम मिनिमल जो पॉसिबल होता है वो खाएंगे, या बहुत ज़्यादा खा के सेल्फ इंड्यूस्ड प्यूक करेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ें लेंगे जिससे उन्हें ईदर दे हैव टू गो टू द टॉयलेट्स अगेन एंड अगेन वेयर देयर इज़ एक्सेसिव स्टूलिंग और एक्सेसिव यूरिनेशन. सो जो भी खाया वो निकल जाए किसी तरीके से, या तो प्यूक के फॉर्म में निकल जाए या टॉयलेटरी के फॉर्म में निकल जाए, टॉयलेटिंग के फॉर्म में. देन देयर इज़ बुलिमिया नर्वोसा. इसमें बेसिकली वेट जो होता है पेशेंट का इतना कम नहीं होता, जो कि उनका कोशिश यही रहती है कि उनका वेट कम हो जाए, बट वेट एज सच इनका इतना कम नहीं होता है. विद देम देर बेसिकली ईट अलॉट. उनका कंट्रोल ईटिंग पे कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं जिस पे उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है ईटिंग पे. सो या तो वो इतना ज़्यादा खाएंगे कि उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए और वो फिर रुक जाए खाने से, या वो बहुत बार कोशिश भी करते हैं कि वो ना खाएं या इतना खाएं कि उनको अपने आप ही नॉजियाटिक फीलिंग हो और वो जाके उसको दे थ्रो अप. Again, self-evaluation is basically depending upon what the body shape is and what the weight is. So, in both cases, weight check करना is again one symptom that is there. So, थोड़ा सा anorexia में थोड़ा सा खाएंगे तो weight जाके check करेंगे. कुछ patients रोज़ weight check करते हैं after eating something. Then we talk about dissociative disorders.
Dissociative disorders are basically again four types: depersonalization disorder, uh, dissociative amnesia, dissociative fugue, and dissociative identity disorder. Now what is dissociative amnesia? जिसमें एक दो एपिसोड्स ऐसे होते हैं कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं, एंड जो उसका जो नेचर होता है, जो एपिसोड आप रिकॉल नहीं करते हैं, इट कैन बी ईदर वेरी स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक. हम आम तौर पे जो चीज़ें भूल जाते हैं, इट्स नॉट एक्सप्लेन थ्रू दैट, इट इज़ समथिंग अ लिटिल मोर दैट द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू रिकॉल. ये रोज़मर्रा की फॉरगेटफुलनेस के जैसा नहीं होता है. इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, इट्स अ लिटिल बियॉन्ड देन if we compare it to what we call it in day-to-day forgetfulness. Then depersonalization disorder, इसमें recurrent feeling या experiences ऐसे होते हैं कि हम अपने आप से attach नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम फीलिंग डेड फ्रॉम इनसाइड, इमोशंस को मैं नहीं फील कर पा रही हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है मैं ड्रीम लाइक स्टेट में हूँ, या बट रियलिटी टेस्टिंग जो होती है वो इंटैक्ट रहती है. मतलब थॉट प्रोसेसेस में एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है, आप रियलिटी से इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन यू हैव दीज फीलिंग्स कि आप अपने आप के साथ अटैच नहीं हैं, आप अपने आप को बाहर से देख रहे हैं, या आप किसी और दुनिया में ड्रीम लाइक स्टेट में हैं, या आप जो महसूस नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कुछ इमोशंस फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पा रहे हैं. Then dissociative fugue, इसमें there is a sudden unexpected travel away from the place or the home that the patient is staying in, or the person is staying in. So एकदम से I had seen this one case once in my lifetime where the patient was going somewhere out to the market, and in the evening found himself somewhere in some other town, and when you asked the patient had the patient could not recall how the patient reached that particular state. So basically this is what dissociative fugue is. So आप किसी और जगह पे चले जाते हैं, but when you try and recall, the patient is not able to recall how that incident happened. The entire procedure also they're not able to recall. In certain cases they assume a different identity also. Then dissociative identity disorder, the presence of two or more distinct identities or personality states, जिसे हम alter egos या alter states भी बोलते हैं. Each have its own relative pattern of perceiving or relating or thinking about things. So एक या दो personalities होती हैं, हर एक का अपना, दोनों personalities का या दो से ज़्यादा personalities का अपना सोचने का तरीका थोड़ा different होता है, बस किसी चीज़ को perceive करने का तरीका अलग होता है, चीज़ों को relate करने का तरीका अलग होता है. We have another caller from Himachal Pradesh. Ji, please ask your question. Got connection, so continue with. Alright, so basically मोटे तौर से ये सारे disorders होते हैं, mental disorders. हर disorder में जो causes होते हैं biological होते हैं, psychological होते हैं, psychosocial होते हैं. Biological is changes in one's brain, in one's chemicals in the brain, that causes these anxiety, low mood states, thought disorders, certain experiences like eating disorders and disorders like these. Also certain psychological difficulties, then आसपास का environment कैसा रहता है, stress की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से भी ये चीज़ें maintain रहती हैं. So it's very important to have a very holistic perspective and holistic approach to dealing with these disorders. So consultation with a psychiatrist, then regular sessions with clinical psychologist, therapy sessions, family का involvement होना बहुत ज़रूरी है. Coming from a cultural perspective that we are from, हम ये नहीं देख सकते कि हम family को इसमें involve ना करें. So family का involvement is also very important to psycho-educate them about what the patient is going through. Half the time family feels that it is something that the patient is doing on their own and it can be controlled, but the fact is that it is not in control of the patient. So how they need to be a little more patient with the person who is suffering from a mental illness, also to deal with the family's emotional difficulties in relating and dealing with the patient's illness. So these are certain areas that we need to work upon and have a holistic treatment towards the mental disorders. Okay, that's all. So I think this is very interesting, and that's very insightful. That's why people are taking interest in this. So the basic things which they keep in the mind while assessing that either they're facing
are going through any disorder or just it's a normal behavior. So how they can discern it? सो एक तो होता है घबराहट की, एक से ऐसी चीज़ है जो बहुत आम तौर से लोग देखते हैं. घबराहट हो गया, मन का उदासीनता होना. सो एक तो घबराहट होती है जो नॉर्मल सिचुएशन में कुछ हद तक हर इंसान को रहती है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत घबराहट आपको रहेगी, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं थोड़ी बहुत घबराहट आपको रहेगी, या स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत घबराहट रहेगी. बट एंग्जाइटी डिसऑर्डर फॉल्स इन अ कैटेगरी जहाँ पर वो घबराहट इतनी कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हो जाती है इन सर्टन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कि उस टाइम पे आपका कंट्रोल कर पाना अपने आप पर बहुत मुश्किल हो जाता है. सो उसमें स्वेटिंग होना या ऐसे नेगेटिव थॉट्स आना, और बहुत टाइम बाद आपको वो डिस्ट्रेस देना शुरू कर देता है. तो सर्टन सिचुएशंस मुश्किल हो जाता है, कुछ सिचुएशंस को फेस करना, लोगों को फेस करना. सो वो एंग्जाइटी इस हद तक बढ़ जाती है. या एग्ज़ाम में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे एंग्जाइटी कंट्रोल करना. सो उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है. तो इन सिचुएशंस में देन वन नीड्स टू गो टू सी अ स्पेशलिस्ट एंड to deal with how to deal with the anxiety. Similar is with the moods. मन एक तो होता है कि ठीक है कुछ चीज़ ख़राब हुई है तो हमारा मन उदास हो गया, लेकिन फिर ठीक हो जाता है. लेकिन अगर किसी मोटे तौर से काफ़ी टाइम तक आपका मन उदास है, नहीं आप कोई चीज़ें कर रहे हैं, आप डेली रूटीन की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, देन अगेन यू नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट. देन ऑफ कोर्स इन स्किज़ोफ्रेनिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो उसमें तो आपका थॉट प्रोसेस में ही दिक्कत होता है. तो वो इन एनी केस पीपल वुड बी एबल टू, आसपास के लोग एटलीस्ट, अगर पेशेंट को नहीं इतना पता होता है सो आसपास के लोग जो होते हैं फैमिली को पता रहता है कि हाँ ये देयर इज़ समथिंग वियर्ड दैट द पेशेंट इज़ टॉकिंग, और जिस तरह से वो सोच रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है. या कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना छोटी सी बात पे, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहना, कभी कभार नुकसान पहुंचा देता. देन अगेन यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट और एंड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. मतलब दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कंसिस्टेंट हो तब वो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और दूसरा अनकंट्रोल्ड जिनको पता नहीं चलेगी किस कारण से हो. इन दो परिस्थितियों को ध्यान में रखना. और इतना ज़्यादा हो जाए कि आप वो सिचुएशन या उस चीज़ से उसको फेस करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाए. जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत ये लगना शुरू होता है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू. और एक जो शुरू में राजस्थान से सवाल था, इस तरह के हादसा तो हर लोगों के साथ कभी ना कभी होता है. उसके बाद कुछ लोग तो उस घबराहट को या उस समस्या को सही ढंग से फेस करते हैं, कुछ लोगों के साथ बाकी ये घबराहट होती है, और कुछ में बरकरार भी रहता है, उसके समय के साथ ख़त्म हो जाता है. तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए? सो जिस तरह की उन्होंने सिचुएशन बताई थी, फॉर एग्जांपल ऐसा जनरली आमतौर पर सभी लोगों के साथ होता है, क्योंकि हर परिवार से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह की घटना तो होना ही है, हर लोगों के साथ होना है. तो और उसमें मेंटल सेटबैक या अदर सेटबैक, तो कोई इसको जल्दी ओवरकम कर पाते हैं, कोई देर से कर पाते हैं. तो उस डिले को उसको ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? सो एक तो होता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट या इमोशनल सेटबैक लगा हो, सो उसके बारे धीरे धीरे उससे उभरें. कोई जल्दी नहीं होती है उस चीज़ को उससे निकलने की. या सो आप आसपास के लोगों से बात करें, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, अपना कांटेक्ट आसपास के लोगों के साथ बनाए रखें. जितना आप अपने आप को अकेला छोड़ेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उतना आपके लिए मुश्किल होएगा उससे बाहर निकलना. सो आसपास की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए. जिनसे आप जाके बात कर सकते हैं, फैमिली के साथ आप बने रहिए. अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा चेंजेस ना लाएं. अगर आप जैसे जैसे उसमें से विड्रॉ करना शुरू करेंगे और जैसे जैसे आप अपने थॉट में उसी चीज़ में सोचने में डूबे रहेंगे, तो उतना आपके लिए मुश्किल होएगा उससे बाहर निकलना. देन ऑफ कोर्स और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या इवन इन सम पेशेंट्स जहाँ पर प्री डिस्पोजिशन रहता है, तो छोटी सी भी कोई चीज़ अगर इधर उधर होती है तो घबराहट और मन उदासीनता बहुत ज़्यादा रहती है. सो दिस इज़ इंडिविजुअली डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल प्री डिस्पोजिशन टू सर्टन थिंग्स. सो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है. जब ये आमतौर पे लोग आइसोलेट होना चाहता है उस समय, जब कि हम अलग हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए. कुछ हद तक ठीक है. ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही लोगों के आसपास रहें और हमेशा ही बात करने की कोशिश करें. कभी कभार ठीक है, बट ये कोशिश रहनी चाहिए कि आपको जो भी आप महसूस कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा हो जिसके साथ आप अपना कम्युनिकेशन या आप क्या फील कर रहे हैं वो आप शेयर कर सकें. तो ये ठीक रहेगा. और जो
एज ए प्रैक्टिशनर आपको देखने को मिलता है किस तरह से लोग शिकायत करते हैं, मेजर क्या शिकायत के साथ आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, उसके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो लोगों के लिए लाभदायक हो, कुछ आप बताएं तो। घबराहट को लेके बहुत ज़्यादा आते हैं, मन का उदास होने को लेके बहुत ज़्यादा आते हैं। देन आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेके बहुत ज़्यादा आते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, टीनेज रिलेशनशिप इश्यूज़, डेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। देन फैमिली पेरेंट्स को ये लगता है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मांग रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल केस में हम कैसे डील करेंगे वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है। सो उस हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है, क्या चेंजेस हैं जो हम फैमिली में ला सकते हैं जो पॉसिबल हैं, या बच्चे में क्या या एडोलेसेंट में या बड़ों में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, पर्टिकुलर डिसऑर्डर में कैसे हम उनकी थिंकिंग प्रोसेस को, उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। ऑफ कोर्स मेडिकल इंटरवेंशन जहाँ ज़रूरी होता है वो भी दिया जाता है। हाउ दिस प्रॉब्लम कुड बी रिजॉल्व, पर्सनल स्पेस एंड family space, because this is the big problem nowadays. They say this is my space, I don't interfere with this. So I don't disagree कि personal space नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चे how can we maintain harmony with both? So see, if you see today's day-to-day living, both the parents are mostly working, right? And वैसे in any case time बहुत कम होता है parents के पास। So बच्चे अपने में अपने काम में और अपनी चीज़ों में busy रहते हैं। So but whatever time they have, the family time, it's important that you share whatever daily things that you have done. So आप भी शेयर करें, बच्चों को भी प्रोत्साहन दे के आप वो शेयर करें अपनी चीज़ें। देन बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एक जजमेंटल व्यू बहुत ज़्यादा ना दें। सो फॉर एग्जांपल इफ़ एन एडोलेसेंट इज़ टॉकिंग अबाउट हर रिलेशनशिप विद हर बॉयफ्रेंड, सो एकदम से उसके बारे में नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिविटी ना दिखाएं, बट हाँ धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करें। ऑल्सो ये भी देखें कि कंटिन्यू डिस्कशन। फर्स्ट टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम अ कॉलर फ्रॉम हरियाणा। जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। मैडम मैं हरियाणा से हूँ। मेरा भाई 27 साल का है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कितने उम्र है उनकी? 27। गुस्सा काफी आता है। सो गुस्सा आने के अगेन बहुत कोई उसका कारण भी है कि किसी निश्चित परिस्थितियों में गुस्सा आता है, या ऐसे ही गुस्सा कभी अपने आप करते हैं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सो एक तो होता है कि गुस्सा बचपन से आ रहा है, थोड़ा टेम्परामेंट ही ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है। एक होता है कि अभी आजकल किसी चीज़ पे गुस्सा आने लगा है। सो एक नज़रिया ये है कि आप ये देखें कि कोई आसपास की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसको परेशान कर रही है, सो उस वजह से गुस्सा आता है। देन दूसरा, अगर टेम्परामेंट ही ऐसा है, सो देयर इज़ समथिंग, थोड़ा सा एग्रेशन मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो उससे फिर वो ठीक हो जाए। क्या ऐसी चीज़ें जिन पे उन्हें गुस्सा आता है, गुस्से की इंटेंसिटी क्या रहती है उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा आता है जिसमें वो तोड़ फोड़ करते हैं या आसपास की चीज़ों को नुकसान हो जाता है, देन अगेन वी नीड टू सी कि क्या है ऐसा जो आसपास की चीज़ों में उनको नुकसान पहुँचा रहा है। देन गुस्से के साथ साथ और क्या सिम्टम्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड इफ़ देयर इज़ अगेन अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। सो गुस्से के साथ साथ अगर अपना ख्याल ना रख पाना या अगेन चीज़ों में इंटरेस्ट लूज़ कर पाना, सो देन वी कैन सी ईदर इन डिप्रेसिव patients we see something like this, or in psychotic patients again we see something similar. गुस्सा मैनिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें वो एकदम से गुस्से में बहुत ज़्यादा कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं, या कोई ऐसे सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर या आसपास की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना। सो देन अगेन, सो दीज आर वेरियस लेवल्स वेयर वी नीड टू सी कि गुस्सा क्यों आता है और इसकी इंटेंसिटी क्या है और इससे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। काम में इफेक्ट आ रहा है या फैमिली में इफेक्ट आ रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशंस में इफेक्ट आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ केसों में देखा कि उसके बाद रियलाइज उनको होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो इसका क्या कोरिलेशन है? सो बहुत से केसेस में रियलाइजेशन आ जाता है। सो अगर आपको एक गुस्सा इम्पल्स में आ रहा है, सो आप बाद में रियलाइज़ करेंगे, पेशेंट को रियलाइज़ होता है कि वो गुस्सा उस टाइम पे नहीं आना चाहिए, बट उस टाइम पे उनके कंट्रोल में नहीं होता है। सो एक अगेन केमिकल की बैलेंस की वजह से भी हो सकता है कि उनकी कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए बोथ मेडिकेशन एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। दूसरा, कभी कभार टेम्परामेंट ऐसा होता है, सो कैसे उन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मोल्ड करेंगे। देन अगेन उनकी इंटेंसिटी, अब क्या चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर रही हैं गुस्से को, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन बहुत से केसेस में जहाँ इंसाइट रहती है तो उनको रियलाइज़ होता है,
मोस्ट केसेस में उनको रियलाइज़ होता है कि गुस्सा आ रहा है तो वो ठीक नहीं है, until unless a patient is psychotic where they don't realize the intensity or whatever is happening, or in an anti social personality कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो then उनको रिमोर्स नहीं होता है। ओके, तो बेहतर है कि इन चीज़ों के साथ साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको एनालाइज करवाएं, तो रेमेडी तुरंत मिल सकता है। Yeah. तो एक वायलेंट जैसे गुस्सा, एक तो जस्ट गुस्सा फॉर द सेक ऑफ गुस्सा कर लिया, अब एक में वायलेंट अफेक्टेड, तो दोनों का ट्रीटमेंट में कुछ अंतर है? सो थोड़ा बहुत गुस्सा तो सबको जायज़ सिचुएशंस में जायज़ भी है, आना भी चाहिए, इट्स एन इमोशन, सो हम सबको वो फील भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गुस्सा ना आए। हम बट जब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है जिसमें आपके आसपास की चीज़ों में इफ़ेक्ट होता है, सो आपके रिलेशंस में इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके काम में इफ़ेक्ट कर रहा है, या आपके बाकी आपका एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन इट इज़ अफेक्टिंग यू, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी गेट सम करेक्शंस मेड एज टू कि गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या ट्रिगर्स हो रहे हैं, किस वजह से आ रहा है, और फिर हम उसको इस हिसाब से ट्रीट करें। ओके, सो एक बैलेंस पर्सनालिटी का बेसिक ट्रेट क्या है? बैलेंस पर्सनालिटी, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसका पर्सपेक्टिव होना, चीज़ों को अगर उस टाइम पे नहीं भी समझ आ रहा है तो वंस द सिचुएशन हैज़ हैपेंड उसके बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करना कि जिस सिचुएशन में जिस हिसाब से हमने काम किया था या क्या किया था, सो देन उस पर रिफ्लेक्ट बैक करना थोड़ा सा, देन अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन कैसे उनको हैंडल करना, जैसे सिचुएशन आती है उसको उस हिसाब से हैंडल करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो पर्सपेक्टिव बना रहे या वो रिफ्लेक्शन रहे आपकी सिचुएशंस के ऊपर, अपने ऊपर, कि आप जो एक्शन ले रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं उस पर आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकें। सो इवन इफ़ यू मेड अ मिस्टेक, इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव इट अ लिटिल फर्दर। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम कोई मिस्टेक्स ही ना करें या हम कहीं कुछ गलत स्टेप ना लें। सो दिस इज समथिंग दैट हैपन्स विद पीपल, बट इट्स इंपॉर्टेंट जस्ट टू realize and reflect and then try and make changes further. बच्चों को खास करके एग्जाम से लेकर काफ़ी चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, और कुछ बच्चे तो रिजल्ट देखने के बाद सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर प्रिपेयर्ड, किस तरह से साइकोलॉजिकली उन लोगों को प्रिपेयर्ड किया जाए कि ऐसे स्टेप्स नहीं लें? एक तो बहुत ज़रूरी होता है इवन टू एजुकेट द पेरेंट्स कि जो उनके आजकल जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बोर्ड एग्जाम्स है, 10th क्लास है, तो उस टाइम पे रिजल्ट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। सो एक तो प्रेशर फ्रॉम द फैमिली इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। Then secondly also to help child understand that what is there in their hands is to make the efforts. So result is something, yes of course it is important, but it is important कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं, आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, आप सही स्टडी पैटर्न रखें। ये नहीं कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम आ गया तो आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को आप टीवी नहीं देख रहे हैं, फ्रेंड से बात नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, आप डेली रूटीन में इतने सारे चेंजेस ला रहे हैं। सो ऑफ कोर्स देन जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी जहाँ से आपको मेंटल ब्रेक मिलता है, जहाँ से आपका प्रेशर थोड़ा कम होता है, एनर्जी मिलती है, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। सो दीज थिंग्स नीड टू बी कंटिन्यूड अलॉन्ग विद द बैलेंस स्टडी पैटर्न। सो पेरेंट्स का भी ये बोलना कि अभी तुम टीवी मत देखो, अभी तुम पढ़ो, तुम इतनी देर तक टीवी कैसे देख रहे हो, तुम पढ़ो। सो टीवी देखना इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग ड्यूरिंग दैट एग्जाम्स, बट इट्स जस्ट दैट प्रॉपर टाइम नीड्स टू बी डिवोटेड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 45 मिनट्स का आप पढ़े हैं, so उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें, राइट? उससे आपको मेंटल ब्रेक मिल जाएगा, फिर आप 45 मिनट्स के लिए पढ़ लें। वंस यू स्टडीड और फिनिश्ड टॉपिक और इवन हाफ द टॉपिक फॉर एन आवर यू स्टडीड, देन यू टेक अ गुड ब्रेक, जिसमें आप चाहे टीवी देखें, चाहे आप फ्रेंड से बात करें, चाहे आप बाहर जाएं। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वॉट पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। एंड और जो एंग्जाइटी होती है कुछ हद तक इट इज़ नॉर्मल। सो अगर बच्चा ये कहता है कि कल एग्जाम में मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो ये कहना कि आप सोच के रहे हो इस बारे में इज़ नॉट समथिंग राइट। सो टू ट्राई एंड हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है, सबको होती है, बट इट इज़ ओके सिंस यू प्रिपेयर्ड। सो जस्ट फोकस ऑन वॉट यू प्रिपेयर्ड एंड योर एफर्ट्स एंड जस्ट डू योर वर्क ओवर देयर। कुछ लोगों को दिक्कतें होती है कि जो मैंने पढ़ाई तो की लेकिन सब कुछ भूल गए, अब क्या करें? सो वो भी एंग्जाइटी के कारण आता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि जैसे ही वहाँ जाते हैं डाउट इतना ज़्यादा रहता है कि पता नहीं जो हमने पढ़ा है वो याद रहेगा नहीं रहेगा, कि वहाँ जाके इन एनी केस भूल जाते हैं। सो देन अगेन अ प्रॉपर स्टडी पैटर्न, अ प्रॉपर एटमोसफेयर, अ हेल्दी एटमोसफेयर, कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो तब उस टाइम पे टीवी या डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। बाद में आप पढ़ने के बाद आप चाहे कुछ भी करें। सो दीज
important study patterns are very important. Okay. And along with that बाकी सारी चीज़ें भी कंटिन्यू रखें. ये ना हो कि आप बाकी सारी चीज़ें साइड ब्लैक कर दें. Parents also need to understand that. Okay. And even teachers for that matter. Teachers also need to understand कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं बच्चे के लिए. सो क्लास में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है, स्पेशली कुछ इंडिविजुअल केसेस में, कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि घबराहट का शिकार रहता है एग्ज़ाम्स के टाइम पे, सो टीचर्स उससे अलग जाके थोड़ा बात करें, उसकी मदद करें. कोई टॉपिक्स अगर हैं जिसमें उनको दिक्कत आ रही है तो उनकी हेल्प करें. सो टीचर्स ऑल्सो नीड टू प्ले अ वेरी गुड रोल इन दिस. एक लास्ट क्वेश्चन. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी सो तो करते हैं कि हम लापरवाह हैं, चलो हम पढ़ लेंगे, सब कुछ आ जाएगा, और रहते भी वैसे हैं, एंड दे परफॉर्म वेल आल्सो. तो हाउ साइकोलॉजिकली यू could explain this kind of behavior and performance? So basically these kids they know their capabilities well. Okay. कुछ हद तक आप ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ओवर कॉन्फिडेंस कुछ लोग देखेंगे कि देखो लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हैं और कर लेते हैं, बट दीज किड्स ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स कि अगर हम कैपेबिलिटीज़ को वो पहचानते हैं, जानते हैं कि अगर हम इस टाइम पे ये पढ़ेंगे तो हमें कल तक याद रहेगा. सो दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन द चाइल्ड टू हैव. सो अगर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम परफॉर्म कर पाएंगे कल, तो आपकी आधी एंग्जाइटी तो वैसे ही कम हो जाती है. सो सम लेवल ऑफ एंग्जाइटी इज समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्सो रियलाइजिंग विद दैट स्लाइट एंग्जाइटी कि हाँ मैं परफॉर्म कर पाऊँगा कल, अगर मैं अभी भी पढ़ूंगा तो मैं कल परफॉर्म कर पाऊँगा. सो दैट इज़ वाई दीज किड्स आर एबल टू परफॉर्म वेल. कहाँ परफॉर्मेंस ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ होता है, जहाँ पर बच्चे बिल्कुल ही एंग्जाइटी उन्हें होती नहीं, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती है. सो देन देयर ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू अ बैड रिजल्ट. बट जहाँ पर उन्हें लगे कि हाँ थोड़ी घबराहट है उन्हें कि हाँ कल पढ़ना चाहिए, आज एग्ज़ाम है, बट उन्हें ये भी कॉन्फिडेंस है कि हम अभी इतना पढ़ेंगे या इतना कर लेंगे, उसके हिसाब से हम कल एग्ज़ाम में दे आएंगे. सो इवन देयर लर्निंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कितनी लर्निंग पावर है, उनकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है. दैट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चाइल्ड पे डिपेंड करता है. Okay. So, well friends, as you heard, there are various disorders, but all disorders, you can't say that we so much dangerous if we take care, we cautiously observe our behavior. And as Dr. Miss Mimamsa Singh Tabar said that consistency और uncontrolled, अगर कोई भी बिहेवियर तो हम लोग को कॉशन हो जाना चाहिए. तो इन शब्दों के साथ आज का लेक्चर को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से मिस मीमांसा सिंह तबर को भी धन्यवाद. इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से विषय को आपके सामने रखा और समझाने की कोशिश की. थैंक यू वेरी मच.